Let us turn our Bible to the book of Luke chapter 12 this morning. और इसमें हम अपने बाइबल को खोलेंगे लूका लिखे सुसमाचार वचन 12वें I वचन think में chapter 15. 15 अध्याय में। And we are today celebrating the Father's Day. और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पिताओं का दिन के। No one can say I don't have a father. कोई भी नहीं कह सकते कि मेरे पास पिता नहीं है। There's only two people in this world, three people in this world who were seen in this world without the father. और आज हम देखते हैं कि ऐसा 3 व्यक्ति है जिनके पास इस संसार में कोई पिता नहीं Or था। actually 4 people शायद who 4 were लोग in this world without the father. शायद संसार में से 4 जन थे जिसके पास पिता नहीं थे। There were 3 people without the father and mother. और ऐसा 3 व्यक्ति थे जिसके पास माँ और पिता नहीं थे। But there were 4 people without the father. लेकिन ऐसे 4 व्यक्ति थे जिसके पास कोई पिता नहीं था। And they were in this world. और लोग ये संसार में थे। Anybody knows their name? क्या किसी को नाम मालूम है? Somebody without the father and mother? कोई बिना माता पिता जी के? Adam? आदम Adam and Eve. आदम और Wonderful. हवा। Amen. आमेन। Adam and Eve had no father and no mother. तो आदम और हवा का कोई माता और पिता नहीं था। When I say no father and no mother, I'm talking about the biological mother and father. तो जब मैं माता और पिताजी के बारे में कह रहा हूँ वो बायोलॉजी के माता पिता के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। And there was another person in the Old Testament who did not have the father and mother. और हम देखते हैं पुराने नियम में और एक व्यक्ति था जिसके पास माता और पिता नहीं थे। Anybody knows his name? क्या किसी को पता है? Melchizedek. Amen. मलकीज़ेदेक। आमीन। Okay, these guys take me to the hotel this week. That's your prize. Okay. There's another person और एक ऐसा व्यक्ति है who had a mother but no father. जिसके पास माता थे लेकिन उसके पास पिता नहीं And थे। what's his name? और उसके नाम क्या था? Hallelujah. हालेलुया। The Lord Jesus had mother but he did not have a biological father. यीशु मसीह के पास माता थे लेकिन उसके पास पिता नहीं थे। There are a lot of people that will ask without the how is it that can anyone be born without the mother in this world? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या बिना माता पिताजी के कोई इस संसार में जन्म ले सकते हैं? There were 3 people who were born without the mother. और हम देखते हैं ऐसा 3 व्यक्ति थे जो बिना माँ के उन लोग जन्म लिए। Adam and Eve and Melchizedek. आदम हवा और मलकीज़ेदेक। Jesus had a biological mother. यीशु मसीह के पास बायोलॉजिकल माँ थे But he did not have a biological father. लेकिन उसके पास बायोलॉजिकल फादर पिता नहीं थे। But all of these 4 people had the heavenly father. लेकिन ये सब 4 जन के पास स्वर्गीय पिता थे। Today is the Father's Day. और आज पिताओं का दिन है। And today we are going to see from the word of God about a father's heart. और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे पिता का हृदय के बारे में। And I hope and I pray as we will study this word that we will appreciate our Father more today और मैं than yesterday. प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि जैसे आज हम सीखेंगे हम अपने पिताओं को हम बहुत ही धन्यवाद देंगे। And we as children fail to appreciate our parents and especially our fathers. और एक बच्चे होने के नाते बहुत से समय हम अपने पिताओं को हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। And as in India, we often call our mothers with some kind of name when we become teenagers. और जब हमारे भारतवर्ष में क्या होते हैं बच्चे लोग जब उन लोग बड़े हो जाते हैं उन लोग अपने माँ को कुछ अलग नाम से उन लोग पुकारते हैं। Can anyone tell me what is the name you tell about your mother? क्या कोई कह सकते हैं कि अपने माँ के बारे में क्या नाम बताया था? Everybody calls their mothers as Hitlers. सभी लोग अपने माताओं को हिटलर्स कह के उन लोग पुकारते हैं। Am I right? क्या मैं सही हूँ? And then when the father comes, और जब पिता आते हैं most of them say there's Duryodhan. बहुत से लोग कहते हैं दुर्योधन कह के। I do not know why, or some people say Amrish Puri. और बहुत से लोग नहीं मालूम कि अमरीश पुरी कह के। But it's because the fathers show themselves as very tough. क्योंकि जो पिता है वो खुद को बहुत ही मजबूत दिखाते हैं। And we sometimes when we grow, we often think like it's just the mother who loves me. और जब हम बढ़ने लगते हैं तो बहुत से समय हम सोचने लगते हैं कि केवल माँ ही हमें प्यार करता है। It's because the mother is very emotional. क्योंकि जो माँ होते हैं उन लोग बहुत ही इमोशनल होती है। And she tends to show that love through the tears. और लोग अपने आंसुओं से प्यार को दिखाना चाहती है। And we are quick to identify the mother's love. और तुरंत हम गिर जाते हैं अपने माँ की प्यार को देखने के लिए, पहचानने के लिए। And it is very true, the mother is very loving. और ये बहुत ही सत्य बात है कि हाँ माँ लोग बहुत ही प्यार करते हैं। And mothers show their emotion with tears. और माएँ अपने प्यार को अपने आंसुओं से दिखाती Or है। they will show it with words. और उन लोग अपने शब्दों से दिखाती है। But as fathers, लेकिन पिता होने के नाते we tend to keep things in our heart. हम चीजों को हृदय में रखते हैं। And we may not show it immediately with tears. हम तुरंत आंसुओं से हम दिखाएंगे नहीं। Unless and until the father is
is really, really broken. जब तक ना कि जो पिता है बहुत ही मतलब टूटा हुआ है, The fathers come across as a tough man. और ऐसा चीजों में वो आता है जहाँ पे वो बहुत ही मजबूत होते We हैं। may not show much affections openly, चाहे हम अपने दया को हम तुरंत नहीं दिखाएंगे, and especially the father when the girl or the boy is in the teenage age. और जैसे बच्चे लोग टीनेज एज में जब उन लोग आते हैं, And so there is a more misunderstanding about the father's love. और पिता के प्यार में ना समझ होते हैं बहुत से समय, And so we often think that it is the mother who shows great love for us. और बहुत से समय हम यही सोचने लगते हैं कि केवल माएं हमें प्यार करते It हैं। is absolutely true that mothers show great love for us. और ये बहुत ही सच बात है कि हाँ माएं हमें बहुत ही प्यार दिखाती है, But there is more deeper love in the heart of the father, लेकिन पिता के which you and I may not understand now. लेकिन पिता के हृदय में बहुत ही गहरा प्यार है, जो प्यार को हम इस समय शायद नहीं देख पाएंगे। And we have to understand and appreciate our fathers. और हमें इसको समझना है और हमें अपने पिताओं को हमें धन्यवाद देना है। Even when we are not appreciative, he still goes out and works and earns for us. अगर भी हम अपने पिताओं को हम धन्यवाद नहीं देंगे, फिर भी उन लोग बाहर जाकर उन लोग काम करते हैं हमारे लिए। Even when we are not grateful, he still buys and meets our needs. जब हम धन्यवाद नहीं होते हैं अपने पिताओं की ओर, फिर भी वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। Someone said, father is like the sun. और किसने कहा जो पिता है वो सूरज जैसा है, And we often say, oh, he's so hot. और हम बहुत से समय कहते हैं बहुत ही गर्म है, It burns. वो बहुत जलता है, He's so angry. बहुत ही गुस्सा है, Oh, he's not showing appreciation. वो बहुत अप्रिशिएट नहीं कर रहा है वो। And so it's the father is like the sun. और पिता जो है वो सूरज जैसा होता है, He is often putting an hindrance for things that would be dangerous to you. और जो हमारे लिए बहुत ही हानि करेगा वो हमेशा बाधाओं को लेके आता है। The mother may say, okay, no problem. शायद माए कह सकते कि नहीं नहीं कुछ परवाह नहीं चलता है, But the father is quick to sense something that is not right and he will stop you. लेकिन पिता क्या होता है उन लोग तुरंत समझ जाते हैं कि ये सही नहीं, तो उन लोग उसी समय आपको थमा But देता then है। we very much we misunderstand the very thoughts of the father. और बहुत से समय हम नहीं समझते हैं हमारे पिताओं के चिंताओं को, And people think that, oh, he really doesn't care, I think. और बहुत से लोग सोचते हैं कि वो मेरे बारे में कोई चिंतित नहीं करते हैं। Look, he doesn't care for my freedom. देखो वो मेरे फ्रीडम के, मेरे स्वतंत्र के ऊपर वो कोई सोचता नहीं, He doesn't care about my joy and my happiness. मेरे आनंद में वो कुछ भी नहीं समझते हैं वो। You know, I wanted to go for a movie. My father is not sending me. मैं फिल्म के लिए जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पिता मुझे नहीं भेज रहा I है। wanted to go with those of my friends, but my father is stopping me. मेरे मित्रों के साथ मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पिता मुझे रोक रहा है। But this is why the father becomes an hindrance in certain things of our life. इसीलिए कुछ चीजों में जो पिताएं होते हैं उन लोग कुछ चीजों में बाधाएं लेके आते हैं, It's because the mother moves with emotion क्योंकि जो माताएं होते हैं उन लोग अपने उन लोग इमोशन से उन लोग हो जाते हैं आगे, and the father moves with intellectual. लेकिन जो पिता है उन लोग बुद्धि ज्ञान से उन लोग आगे बढ़ते You हैं। cannot move the father's heart with your tears. आप अपने आंसू से अपने पिताओं के हृदय को आप कभी पिघला नहीं सकेंगे। You can melt your mother's heart with your tears, शायद आपके आंसू से आपकी माँ की हृदय को आप but पिघला you सकते हैं, cannot move your father's heart with the tears. लेकिन आपके पिता के हृदय को आप कभी पिघला नहीं पाएंगे। Even though your father is moved within his heart, लेकिन शायद अंदर ही वो आ चुके हैं उस सिचुएशन में, yet the father hardens his heart just for yours protection. लेकिन फिर भी पिता क्या करते हैं अपने हृदय को कठोर करता है आपकी अच्छा के लिए। When the father says no, it's not because he hates you. जब पिता कहते हैं कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नफरत करता है, It's because he loves you and he wants to protect you. क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, वो आपको सुरक्षा करना चाहता है। That is the nature that God puts in the heart of every man. और वही चरित्र है जो परमेश्वर ने हर एक पिताओं के हृदय में डाल दिया है। There is a lot of misunderstanding about the father's nature. और पिताओं के जो चरित्र में बहुत से ना समझ चीजें हैं। So father is kind of a sun that we see every day. तो पिता ऐसा सूरज के प्रकार है जो हम हर दिन देखते हैं, And we misunderstand. और उसको हम समझते नहीं। And that's why we say, oh man, this is so humid today. और इसलिए लोग कहते हैं कि आज बहुत ही गर्मी है, Oh, it's so hot today. The weather is very bad. और आज की जो वेदर है बहुत ही खराब है। But we tend to forget that the sun is giving us light. लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो सूरज है वो हमें ज्योति दे रहे हैं, The sun gives us the necessary vitamins that is needed for our body. और सूरज हमारे हर एक जरूरत की जो विटामिन होते हैं उसको देते हैं। The sun gives everything that makes us warm in our body. और सूरज वो चीजों को देते हैं जहाँ पे हमें शरीर की गर्माहट के लिए, The sun allows the plants to grow healthy. और हमारे शरीर की जो भिन्न भिन्न चीजों को वो बढ़ने के लिए मदद करता है। The sun kills the germs, unnecessary germs in our body. और हर एक गंदगी को सूरज मार देता है।
But then we complain, oh, it's so humid. लेकिन हम क्या करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं बहुत ही गर्मी है कह के, And that is how the Father is. और वही उसी प्रकार से पिता भी है. As long as He is upon you, जितना दिन वो आपके ऊपर है, as long as His hand is upon you as a control, जब तक वो उसके हाथ आपके ऊपर है, कंट्रोल we करते may हैं. misunderstand शायद हम नहीं समझते हैं and उसको, we may say, और हम कह सकते हैं oh, He is so hard upon me. वो बहुत ही मेरे ऊपर बहुत ही कठोर है, He is not very happy about me. वो मेरे ऊपर बहुत खुश नहीं है, He doesn't use the words that He's supposed to use और in वो- appreciating me. और उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करते हैं जो शब्दों को इस्तेमाल करने चाहिए. And we don't realize the love of the Father और उस समय हम जान नहीं पाते परमेश्वर के प्यार को, until the Father sets down. जब तक ना पिता बैठ जाते हैं. When the sun sets, जब सूरज डूब जाता है darkness comes in our उस life. समय क्या होता है, अंधेरा आ जाती है. And it's the same way when the Father sets, और उसी प्रकार जब पिता डूब जाता है darkness comes upon our उस life. समय हमारे जीवन में अंधेरा आ जाता है. And our fathers are like the sun. और हमारे पिता सूरज जैसा है, We feel humid. और हम गर्मी हम महसूस करते हैं, We feel hot. और हम गर्मी बहुत गर्माहट को महसूस करते हैं. But all these things are necessity to protect our lives. लेकिन इन सब चीजें हमारी अच्छाई के लिए हैं. And you and I need to learn to appreciate our Father. और हमें सीखना चाहिए अपने पिताओं को धन्यवाद देने के लिए. You and I need to thank God for our fathers who have invested their time and their money and everything. हमें हमारे हर एक पिताओं को हमें धन्यवाद देना चाहिए. उन लोग अपने समय को हमारे लिए गुजारते हैं, पैसा को उन लोग खर्च करते हैं. Every mother's duty is to praise the Father in front of the children. हर एक माँ की कर्तव्य वो क्या है, बच्चों के आगे प्रार्थना करना. Even when there is a misunderstanding, you don't speak negative about the Father in front of your children. तो जब कुछ गलत हो जाते हैं, आप अपने बच्चों के सामने अपने पिता के बारे में आप विरोध बात मत करिए. You want your children to look up unto your husband. आप चाहते हैं कि आपके बच्चे लोग पिता के ऊपर ताकि उन लोग देखें. The children has to look at the Father with a great respect. बच्चे लोग वही रिस्पेक्ट से उन लोग को देखना चाहिए अपने पिताओं के ऊपर. Because the mothers can influence the children a lot. शायद बच्चे लोग उन लोग प्रभावित कर सकते हैं मम्मी लोग बच्चों को. And if you keep on speaking negative about the fathers, then the children will grow to be negative about their fathers. अगर आप लोग गलत चीजों को बातचीत करने के लिए शुरू करेंगे तो बच्चे लोग भी उन लोग नेगेटिव सोचने लगेंगे. As the child grows, the child thinks the father is the richest man in the world. जैसे बच्चे लोग बढ़ते हैं उन लोग सोचते हैं कि हमारे पिता बहुत ही धनी हैं. Yesterday we went to Panjim. I went to Panjim with my little fellow Stephen. और स्टीवन के साथ मैं कल पंजिम गया. And he started giving me a list of things that he wants me to buy. और बहुत से लिस्ट को उसने दिया जो वो खरीदना चाहते थे. He started with ice cream. और वो आइसक्रीम से शुरुआत की. It was easy to buy ice cream. और ये बहुत ही सरल था आइसक्रीम खरीदने के And then लिए. he said, Daddy, after ice cream, I want to have coffee because it will help me not to get cold. और उसने आइसक्रीम के बाद कहा कि आइसक्रीम के बाद मैं कॉफी पीना चाहता हूँ तो मुझे ठंडा नहीं होगा. And then the third thing was to buy a boat in the Mandovi River. और तीसरी जो चीज था वो नाव खरीदना चाहते थे. That big fastest yacht he wanted me to buy. जो बहुत ही फास्ट चलता है उसको वो खरीदना चाहते थे. In my mind, I'm thinking, मेरे जो मन में मैं सोच रहा था, I'm so glad my son thinks that I can buy the whole world for him. मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे जो संतान है वो सोचते हैं कि मैं पूरे संसार को खरीद सकता हूँ. Every child thinks the same way about their fathers. और हर एक बच्चे लोग अपने पिता के बारे में वो ही सोचते हैं. No matter how rich or how poor the child is, जितना भी or the family is, जो परिवार जितना भी गरीब या फिर धनी हो, the child thinks my father can buy everything that लेकिन I बच्चे say. लोग समझते हैं कि मेरे पिता मेरे लिए सब कुछ खरीद सकते हैं. And it is the work of the mother to protect such kind of appreciation and respect in the heart of the child. और ये माँ की कर्तव्य होती है कि अपने बच्चों के सामने उन लोग ताकि सम्मान को ताकि उन लोग ला सके. The child grows to think there is no other superman in the world but my father is the most strongest man. जैसे बच्चे लोग बढ़ते हैं उन लोग सोचने लगते हैं कि मेरे पिता ही सबसे सर्वशक्तिमान है. And that is what the children think as the children grow up. और वही बच्चे लोग जब बढ़ते हैं उन लोग समझते हैं वही. But as they grow, things change in their mind. लेकिन जब उन लोग बढ़ने लगते हैं उन लोग के दिमाग में चीजें बदलने लगती And हैं. it all also depends upon how the mother and father behave in front of their children. और उसके ऊपर भी है कैसे माँ और पिताएं उन लोग कैसे उन लोग चरित्र को दिखाते हैं बच्चों के If सामने. the father will honor his wife in front of the children will grow to love and respect and appreciate the mother. अगर पिता अपने पत्नी को अगर वो प्यार करना है या प्यार करते हैं या फिर सम्मान देते हैं तो बच्चे लोग भी उसी प्रकार से बनते हैं. Praises and encouragement towards the wife should be done openly in front of the children. और प्रशंसा और सम्मान चीजें बच्चों के सामने होने चाहिए. The children should know that my father loves my mother very much and respects
my mother very much. और बच्चों को जानना चाहिए कि जो मेरी जो पिता है अपनी पत्नी को बहुत ही प्यार करता है. And the same goes to the mothers towards the fathers. और उसी प्रकार माँ भी अपनी पति की ओर जाना चाहिए. Every wife should be speaking highly about her husband in front of their children. और जो औरत है उन लोग अपने बच्चों के सामने उन लोग अपने पतियों के बारे में बहुत ही अच्छे से बात करने चाहिए. The misunderstanding, the problems can be solved inside privately. क्या होता है जो ना समझ चीजें होते हैं उन लोग प्राइवेट में मतलब सीक्रेट में उन लोग बातचीत कर सकते Every हैं. husband and wives have some disagreements and problems and issues in life. और पति पत्नी के जीवन में बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जो मतलब ना समझ के But होते हैं. those things should not be brought in front of the children. लेकिन चीजों को बच्चों के सामने लेके आना नहीं चाहिए. Those things should be solved privately Yes. in your room. ये सब चीजें वो सीक्रेटली वो करने चाहिए. But love, appreciation, encouragement ought to be done, praises openly in front of your children. लेकिन प्यार और जो सम्मान है या फिर उत्साह है वो बच्चों के आगे होने And चाहिए. when you do that, you are actually investing in your children's life to grow up like a plant that is planted by the rivers of तो water. जब उस प्रकार से करते हैं आपके बच्चों के जीवन में बहुत ही आशीष को आप लेके आते हैं परमेश्वर की ओर से. And so many times we misunderstand the fathers. और बहुत से समय हम नहीं समझ पाते हैं अपने पिता के बारे में. And no matter how strong and how high-minded your father may be, he just loves you. And he will do anything for you in this world. जितना भी आपके पिता स्ट्रांग हो लेकिन वो आपके भलाई के लिए वो करते हैं. I want to bring a message to you from the Word of God this morning. आज मैं एक मैसेज आपके सामने लेके आना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन की ओर से. From the Gospel of Luke chapter 15. लुका लिखित सुसमाचार अध्याय 15 में I want you to follow with me from verse number 11 onwards. मैं चाहता हूँ कि आप अनुसरण कर रहे 11वें वचन से. And I'm going to read and he's going to read and we are going to follow the Word of God together. और इस समय हम पढ़ेंगे और हम अनुसरण करेंगे. Verse number 11 says, और 11वें वचन कहता है, and he said, a certain man had two sons. और कहता है कि फिर उसने कहा किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे. So Jesus Christ is giving a parable to his apostles and the others and disciples and is giving them a lesson. और यीशु मसीह अपने चेलों को एक दृष्टांत दे रहा And है. so Jesus is speaking about a father and two sons. और यीशु मसीह यहाँ पे एक पिता और 2 पुत्रों के बारे में बातचीत कर रहे हैं. It doesn't speak about the mother here. और यहाँ पे माँ के बारे में बातचीत नहीं And होता so है. when you read about this, you understand Jesus is trying to teach about the life of every individual and the life of a salvation. तो जहाँ पे हम पढ़ते हैं वहाँ पे यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है कि एक व्यक्ति का उद्धार के बारे में और हमारे जीवन के बारे में. So a man had two sons here. तो एक व्यक्ति का 2 पुत्र थे. So if he has two sons, then one is older and one is younger. तो अगर आपके पास 2 पुत्र है तो एक छोटा है एक बड़ा है. In verse number 12 we see, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. और 12वें वचन में कहता है उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए. उसने कहा अपनी संपत्ति बांट दी. So now these two sons have grown up and they are strong and they want to adventure the world. और दोनों बच्चे लोग उन लोग बड़े उन लोग मतलब कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में. Now the older son is working very hard in the field. जो बड़ा पुत्र है वो अब काम कर रहे हैं वो He's खेत में. taking care of the business of the father. और अपने पिता के हर एक कार्य में वो मतलब टेक केयर कर रहा है. And we don't read anything about the son until the last verse that we come through. और उस बच्चे के बारे में हम आखिरी तक हम नहीं पढ़ते हैं कुछ भी. But here is surprising thing that we hear about the younger son. लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत हम चीज को देखते हैं छोटे बच्चे के बारे में. You see, the second child is always little 5 point higher than the older son. और हम देखते हैं जो छोटा पुत्र होता है वो बड़े से भी वो ज्यादा कुछ होते हैं. They are little forward than the older one. उन लोग हमेशा आगे होते हैं. I'm not trying to say that the older one is dumb. मैं नहीं कह रहा हूँ जो बड़ा सान है वो मतलब वो नीचे है या फिर I'm गिरा just हुआ है. trying to say the second one is naughty. लेकिन मैं कह रहा हूँ जो दूसरा है वो बहुत ही नोटी होते हैं. And so in verse number 12, और 12वें वचन में the Bible says परमेश्वर की वचन कहता है that the younger son comes to the father, और जो छोटा पुत्र है वो पिता के पास आता है. and the son says, Father, और वो कहता है अपने पिता को, I want you to divide this portion, this property, and give me my portion. मैं चाहता हूँ कि संपत्ति में जो हिस्सा है वो मुझे आप दे दीजिए. According to the culture, when the son comes and says, give me the portion, I want to go away, it's almost like tearing the heart of the father into two. और ये ऐसा है कि उन लोग वो आकर कहते हैं कि पिताजी को संपत्ति को 2 हिस्से में बांटने के लिए वो कहता है. Basically,
the son gets to stay with the father and enjoy everything. और क्या है कि बच्चे लोग अपने पिता के पास रह सकते हैं और सब चीजों को वो एंजॉय कर सकते But हैं, here the younger son, he wants to go and enjoy the world. लेकिन यहाँ पे छोटा संतान वो कहता है कि वो जाकर संसार में वो आनंदित मनाना चाहता He है wants to taste every pleasures of this world. और हर एक चीजों को वो चखना चाहता है And he comes to this father और अपने पिता के पास वो आता है and says, give me the portion of goods that followed to me. और वो कहता है संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। The surprising thing here is the father did not question him. और यहाँ पे अद्भुत चीज वही कि पिता ने प्रश्न नहीं पूछा। At least we do not know, and it is which is written in the Bible. हम नहीं जानते जो बाइबल में लिखा गया है। So if we have to say, the father might have asked, why? शायद पिता ने पूछा रहा क्यों, This is all yours. ये सब तुम्हारा है, Why do you want me to divide the portion and give it to you? क्यों तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे 2 भाग करूं और तुम्हें दूं। And I'm sure maybe the father might have tried to tell him, no son, it is very bad out in the world. मुझे पक्का पता है कि शायद पिता ने कहा रहेगा कि नहीं ये बहुत ही खराब है, बहुत ही अच्छी बात नहीं है। I want you to stay with me and enjoy life with me. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और खुश रहे। I want you to protect you from the world. मैं तुम्हें संसार से तुम्हें रक्षा करना चाहता हूँ। Out there is wicked things happening. देखो संसार में कितना दुष्ट हो रही है। You see, there are ungodly women out in the world. देख यहाँ पे देखेंगे जब गलत औरत लोग यहाँ पे घूम रही है। There are drugs and alcohols and sexual problems everywhere in the world. और दारू और बहुत सी गंदी गंदी चीजें हो रही संसार में। And there is murders and all kind of atrocities happening in the world. और हत्या और बहुत सारी खराब चीजें हो रही संसार में। My son, stay with me. मेरे पुत्र मेरे साथ रहिए। I want to protect you. मैं तुम्हें रक्षा करना चाहता Has हूँ। there been any less in my love for you? और क्या तुझे मैं प्यार करता हूँ? Did I keep anything lacking for your needs to be met? क्या मैंने तुम्हारे जरूरत के लिए मैंने कुछ कमी कर दिया? My son, did I fail in giving my love for you? क्या मैंने प्यार को देने में मैंने कुछ कमी घटी की? Stay with me. मेरे साथ रहो। Don't go out into the world. संसार में आप मत जाओ, The world out is very bad. क्योंकि संसार बाहर बहुत ही खराब है, It's very evil and wicked. ये बहुत ही दुष्ट है। But the son says, give me what belongs to me, लेकिन Father. यहाँ पे पुत्र कहता है कि जो मेरे हैं वो मुझे दे दीजिए। And the Bible says, and he divided unto them his living. और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उनके अपनी संपत्ति को बांट दे। So everything he divided into 50 and gave what belongs to the younger son. और सब कुछ वो बांट कर वो जो छोटा बेटा को देना है उसको दे दिया। The Bible says in verse number 13, और 13वें वचन में कहता है, and not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country and wasted his substance with riotous living. बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। He went away from the father. और अपने पिता से वो दूर चला गया He went far into the world. और वो संसार में बहुत ही दूर चले गए। And the Bible says, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, he wasted his substance with riotous living. और यहाँ पे लिखा है कुकर्म से अपने संपत्ति को उड़ा दी। So he wasted his life into all the wickedness. और सब चीजों को वो क्या कर दिया, खराब कर दिया, सब दुष्टता चीजों में। All that money that he had, he spent in drinking and in drugs and in prostitutions and all kind of sins. जो कुछ भी अपने पास वो पैसे थे वो क्या किया, सब गलत चीजों में उड़ा दिया उसने। The Bible says such kind of wicked life that he lived. और परमेश्वर के वचन कहता है उस प्रकार से गंदे जीवन वो जी रहे थे। And that's why the reason why the fathers want to protect us from. और इसीलिए हमारे पिता हमें रक्षा करना चाहते हैं उन सब चीजों से। But the son was very adamant about this. लेकिन उसके संतान बहुत ही उसके लिए बहुत ही आक्रामित थे। The father gave him and he went and wasted his substance. और पिता ने सब कुछ दिया और उस सब कुछ बिगाड़ दिया। Here it is. He did not enjoy life. He wasted his life. यहाँ पे हमें जानना चाहिए कि वो लाइफ को वो एंजॉय नहीं किया, लेकिन वो लाइफ को बिगाड़ दिया। Now the Bible says परमेश्वर के वचन कहता है in verse number 14. और 14वां वचन में, My dear friend, remember there is always a great wind and storm that will come in your life when you go away from your father's word. मेरे प्रिय आपको जानना है जब आप पिता से आप जब दूर हो जाते हैं आपके जीवन में आंधी और तूफानी आएगी। There was a word that came to Jonah और ऐसा चीज था, शब्द था जो जोना के यहाँ पे आया जीवन from में, God the Father. परमेश्वर पिता से। Jonah, son of Amittai, जोना जो अमिताई का जो पुत्र है, arise and go unto Nineveh तुम उठो और निनिवे में जाओ and go and cry unto them, और उस नगर में तुम जाओ, for their wickedness is come upon क्योंकि unto उन लोग की me. दुष्टता मेरे ऊपर आ रहे And हैं I'm going to destroy Nineveh. और मैं निनिवे को मैं नष्ट करना चाहता हूँ। And the father's word came to Jonah. और पिता के जो शब्द वो जोना के पास आया। But the Bible says Jonah
Jonah got up and went far away from the Father. और परमेश्वर की वचन कहता है कि जोना उठा और वो बहुत ही दूर चले गए परमेश्वर And से। when he went away far away, जब वो दूर चले गए, the Bible says, and God sent a great wind. और परमेश्वर की वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उस समय बहुत ही बड़ी आंधी को भेजा उसके जीवन And we में। know the story what happened to Jonah. और हमें स्टोरी को हमें पता है जोना को क्या There हुआ। was a great storm and it all confused and confounded everything in the ship. और बहुत ही आंधी तूफाने थे और जहाज को वो बिखार दिया। Jonah, then they found out it was Jonah. और उन लोगों को पता चला ये जोना की वजह से हो रहा है। And Jonah had to be thrown into this great ocean. और जोना को उस समय पानी में फेंका गया। And Jonah was swallowed by this great whale. और वो जो मछली थे उसको निगल लिया। And he was there into the belly of the fish for 3 days and 3 nights. और जोना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात थे उस समय। And then he is vomited into the Nineveh shore. और समुद्र के किनारे में उसको मतलब वो कर दिया, उल्टे कर दिया। That's what happens when you go far away from the Father's word. और वही होता है जब हम परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। The Father doesn't want you to be ruined in your life. परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन खराब हो। The Father wants to protect your life from getting miserable. परमेश्वर आपके जीवन को वो रक्षा करना चाहता है खराब But होने this से। man went and he lost everything. और ये व्यक्ति बहुत ही दूर जाकर वो सब कुछ वो खो दिया। Verse number 14 says, and when he had spent all, और वचन 14 में कहता है जब वो सब कुछ खर्च कर चुका था, there arose a mighty famine in that land and he began to be in want. तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो My गया। dear friend, this father was extremely rich man. और ये पिता जो थे वो बहुत ही धनी व्यक्ति था। This father had great wealth and lots of servants and beautiful houses and lands. और ये पिता के पास बहुत सारे पैसे, बहुत सारे धन थे, बहुत सारे नौकर भी थे। He was a very wealthy man. और वो बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। Everything actually belonged to the son. और सब कुछ पुत्र के लिए है सब कुछ But एक्चुअली। the son went far away. लेकिन पुत्र ने क्या किया, वो बहुत ही दूर चले गए। There was a great mighty famine that arose in the और land. हम देखते हैं बहुत ही बड़ा अकाल पड़ गया वहाँ What पे। is famine? अकाल क्या है? Famine is dryness in the land. और अकाल क्या है? सब सूखा। There was no rain. वहाँ पे कोई बारिश नहीं थी। And because there was no rain, there was no food. बारिश नहीं होने की वजह से कोई खाना पीना नहीं था। And because there was no food, people starved. और वो खाना नहीं है इसके लिए लोग मर रहे थे। And people were dying और लोग मर रहे थे उस समय out of hunger. और भूख के वजह से। And they were being killed by this famine. और इन लोग सब लोग मर गए इस फैमिन के वजह से। This man had gone far away from the Father's word. और ये पिता से वो बहुत ही दूर चले गए थे। He went into the outer world, away from the Father's world. और वो संसार में चले गए अपने पिता से होकर। Verse number 15 says, और 15वें वचन में कहता है, or verse number 14 because basically says, because of this man, he began to be in want. और क्या हो गया, उसको जरूरत चीजें उसका सब खत्म हो चुका था। Now he had nothing in his hands. और उसके हाथ में वो भी कुछ नहीं था। The Bible says he went and joined himself to a citizen of that country and he sent him into his field to feed swine. और लिखा है इसीलिए वो उस देश में निवासियों में से एक यहाँ सो बरा और उसमें से खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। Sometimes when you disobey your fathers, जब आप अपने पिताओं का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, to teach you a lesson, the Father will allow some famine in your land. सिखाने के लिए कि आपके जीवन में कुछ चीजों को लेके आएंगे। We have a beanie bag in our home. और हम देखते हैं हमारे घर में पिगी बैंक है। Not piggy bank, beanie bag. मिनी बैग। हाँ, I have piggy bank also. मेरे पास पिगी बैंक भी है। So all the coins from my pocket goes into that piggy bank. जितना सारे कॉइन्स है सब पिगी बैंक के अंदर But जाता I है। have a beanie bag. और मेरे पास एक बैग है So this bag is a spongy thing. और ये बैग बहुत ही सॉफ्ट है। And my boys were warned that they cannot be jumping on it. और उन लोग चाहते हैं कि उन लोग यहाँ पे जंप करें उसके ऊपर। They should not be jumping उन on लोग उसके ऊपर जंप नहीं करना है। it. And so they are told not to jump on the bed, not to jump on the couch, not to jump on the beanie bag. और उन लोगों को कहा गया कि तुम लोग जंप नहीं करना चाहिए किसी के चीज के ऊपर भी। But you know what happens to the children? लेकिन क्या हुआ पता है बच्चों के जीवन में? What you tell them not to do, that's what they do. जो कुछ आप कहते हैं नहीं करने के लिए वही उन लोग करते हैं। And so, just 2 days back, my two guys were jumping on the beanie bag. और 2 दिन पहले उस बैग के ऊपर उन लोग जंप कर रहे थे। They were told not to do it. उन लोगों को कहा गया था उन लोग नहीं करने But के लिए। from the couch, they jumped on the beanie bag. लेकिन खाओ से उन लोग क्या किया, उस बैग के ऊपर उन लोगों ने उछाला And the beanie bag burst open. और उस समय वो क्या फट गया And all the confettis came out into our house. और जो सब है वो बाहर आ गया वो घर के Now, how ऊपर। can you even, in the night just before you're going to sleep, how can you solve this problem? कैसे आप सोने से पहले रात को के इस सब चीजों को आप सॉल्व करेंगे? All the beanie bags all over the house. जो बैग उस चारों तरफ है घर में बिखरा हुआ।
I was not happy. उस समय मैं खुश नहीं था. They were told not to do it. उन लोगों को कहा गया था नहीं करने के लिए, I wanted to spank, और मैं उन लोगों को मारना चाहता था, but I didn't. लेकिन मैंने नहीं मारा. But I told them to do something. लेकिन मैंने उन लोगों को कुछ करने के लिए कहा, I told my sons, और मैंने अपने संतान को कहा, they cannot sleep उन लोग सो नहीं पाएंगे until they clean everything. जब तक उन लोग साफ सफाई नहीं करेंगे. We had to put the fan off. और उस समय हमें फैन को ऑफ करना Because था, if you put the fan on, the beanie bag will go all over the क्योंकि place. अगर आप फैन को ऑन करेंगे तो चारों तरफ फैल जाएगा. So we had to put the fan off तो उस समय हमने फैन को ऑफ किया and told my boys to clean it up. और बच्चों को कहा सब कुछ साफ सफाई I करने के gave लिए. them a huge bag और मैंने को एक बहुत बड़ा बैग दिया and told them to put it in. और उन लोग को अंदर वो डालने के लिए कहा. So because the fan was off, क्योंकि फैन ऑफ था, they were sweating. उन लोग बहुत ही पसीना पसीना हो There गए. was too much famine in the house. उन that लोग के day. जीवन में बहुत ही वो थे उस समय. And they were working together to put it into the bag. और उन लोग काम कर रहे थे दोनों मिलकर. They were not happy. उन लोग खुश नहीं थे. They started crying. उन लोग दोनों रोने लगे. But I said, no, you're going to do that and only then you're going to sleep. लेकिन मैंने कहा आपको ये करना है, उसके बाद ही आपको सोने के लिए मिलेगा. And finally, they achieved their target और उस समय उन लोगों ने काम को कर दिए and they finished it. और उन लोगों ने समाप्त भी किया. Sometimes the fathers have to act hard to teach a lesson to the children. और बहुत से समय उन लोग को बहुत ही हार्ड होना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए. When you give in too early, then your children will take advantage of your जब life. बहुत ही जल्दी दे देते हैं उन लोग को तो उन लोग मौका का फायदा उठाएंगे. They will think my mom and my dad doesn't believe in what they say. और उन लोग शायद सोचेंगे कि मेरे पिता और मेरी मम्मी जो कहते हैं उन लोग विश्वास नहीं करते जो Oh, कुछ I कह can लेते हैं. disobey what they say because they will not beat me. They will not say anything. मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उन लोग कुछ भी नहीं करेंगे मुझे. At least that's not how God the Father is. और उस प्रकार से हमारा पिता नहीं है. You and I have to send a little famine to make them understand where they और are dry. और हमें उन लोगों के जीवन में कुछ अकाल देना चाहिए ताकि उन लोग समझ सके. So the Bible says this guy was so this, now he had to go and work and eat what the pigs were eating. तो यहाँ पे ऐसा हो गया उसके जीवन में जहाँ पे वो जाकर काम करने लगे और जो सुअर खाते थे वही वो खाने लगे. And he had to go and take care of the swines. और उसको सुअर को वो चराते थे उस समय. Verse number 16 says, and he would fain have filled his belly with a husk, that the swine did eat, and no man gave unto him. और 16वां वचन में कहता है और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपने पेट भरे. So the only salary that this man, this younger son, could now have in the midst of a famine is eat what the pigs eat. और उसका जो फल था उस समय काम करने का वो वही था जो सुअर खाते थे वही उसको खाना पड़ता था उस समय. Because there's no food for men. क्योंकि उस समय उस मनुष्य के लिए कोई खाना नहीं था, भोजन नहीं था. Eat what the pigs eat. जो सुअर खाते वही खाओ. That is the nature of sin in this world. वही एक चरित्र है संसार का पाप So का. when these people go in the worldly life, they're eating what the pigs are eating. तो संसार में जब लोग चाहते हैं तो उसी प्रकार जो सुअर खाते हैं लोग भी वही खाते हैं. And sometimes God allows the famine in our life. और बहुत से समय हमारे जीवन में परमेश्वर अकाल को वो अनुमति देता है. That's why sometimes fathers are a little hard on us. इसलिए बहुत से समय पिताएं बहुत ही हार्ड होते हैं हमारे ऊपर. The Bible says in verse number 17, और 17वां वचन में कहता है and when he came to himself, जब वो अपने आप में आया, which means he realized, उस समय वो जान पाया what did I do to myself? मैंने अपने आप को क्या किया. I have made my life miserable. मैंने अपने जीवन को मैंने बर्बाद कर दिया. Look, my father was rich. देखो मेरा पिता कितना धनवान He थे, had so many servants. उसके पास बहुत सारे नौकर थे, The refrigerator is packed with food. सब भोजन के साथ वो भरा हुआ था. The table is filled with food. टेबल सब भोजन के That's- फला हुआ था. My clothes never got dirty. मेरे जो कपड़े हैं वो कभी गंदे नहीं हुए. I could put new clothes every मैं day. हर दिन नया कपड़ा मैं पहन सकता My था. sandals were new every मेरे day. सैंडल जो वो हर दिन नए थे. And look now what is happening. लेकिन देखो अभी मेरे जीवन में क्या हुआ. So he came to himself. और उस समय वो जान पाया. Which means he understood what mistakes he did. इसका मतलब वही है कि वो समझ पाया जो वो गलत काम को किए. And he said, और उसने कहा how many hired servants of my fathers have bread enough to spare, and I perish with hunger. मेरे पिता के कितने ही मजदूर भोजन से अधिक रोटी मिले है जो जहाँ पे मैं भूखा मर रहा हूँ. I will arise and go to my father, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा and I will say unto him, और उससे कहूंगा Father, पिता I have sinned against heaven मैंने स्वर्ग से विरुद्ध पाप किया है and before you and before thee, और आपकी दृष्टि में पाप किया है and I am no more worthy to be called thy son. और आपके योग्य नहीं कि आपके पुत्र कहलाऊं. Make me as one of thy hired servants. मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले.
The son realized, उस समय जो संतान है वो जान पाते हैं, what did I do to my father? मैंने अपने पिता के विरुद्ध क्या किया, Why did I disobey my father's word? क्यों मैंने अपने पिता का शब्द को मैं What पालन नहीं have I किया, done to myself now? अब मैंने अपने जीवन में क्या किया। He realizes his mistake. उस समय वो अपने मिस्टेक को जान He पाया realizes his sin. और अपने पाप को वो जान पाया, Now he gets up. और उस समय वो उठ जाता है, He repents. और वो पश्चाताप करता है। What is repentance? पश्चाताप क्या है? Repentance is not just I will go to my father and sit down here. पश्चाताप वही नहीं कि मैं पिता के पास जाऊंगा, उसके शरणों में बैठ जाऊंगा। You can change your mind all the time that you want. अपने दिमाग को हमेशा आप बदल सकते हैं, But if you don't put that repentance into action, that's no repentance at all. लेकिन उस पश्चाताप अगर आप क्रिया में नहीं बदलेंगे तो वो पश्चाताप नहीं है। Repentance is a change of mind that leads to change of action, that leads to change of direction. पश्चाताप वही है आपकी जो दिमाग बदल जाता है और क्रिया से बदलकर आपको सही चीजों में लेके जाने जाता है, That is what repentance और is. वही पश्चाताप है। This man, he changed his mind. और ये जो व्यक्ति है अपने दिमाग को बदल देता है, Oh, I don't want to sit here and eat what the swines eat. मैं यहाँ पे बैठना नहीं चाहता हूँ, जो सुअर खा रहे हैं वो मैं नहीं खाना चाहता हूँ, I want to go to my father. मैं अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ, I'm going to ask him to forgive me. और मैं क्षमा चाहूंगा उस समय, I'm going to need his grace now. और मुझे उसकी अनुग्रह की जरूरत है। Look, with all my wealth, I couldn't do anything. देखो मैंने कुछ भी नहीं कर पाया, Look, I cannot please the Lord देखो मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता हूँ, because I'm a sinner. क्योंकि मैं पापी हूँ, I'm a miserable sinner. मैं बहुत ही खराब पापी हूँ। With my good works and with my wealth, I cannot please God. मेरे कार्य से, मेरे धन से मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता I हूँ। need my father. मुझे मेरे पिता की जरूरत I है, need his grace. मुझे उसकी अनुग्रह की It is जरूरत only है, by his grace that my life can be spared. उसके अनुग्रह के द्वारा से मेरा जीवन बदल सकता है। I repent of my sin. मैं इस समय पश्चाताप करता हूँ पाप से, I change my mind. मैं मेरे मन को बदलता हूँ, I change my action. मैं मेरी क्रिया को बदलता हूँ, I will take towards God now. और मैं परमेश्वर की ओर कदम को बढ़ाऊंगा। And so this younger son, तो ये जो छोटा बेटा है he changes mind. अपने दिमाग को बदलता है, He changes action. और अपने क्रिया को बदलता है, And he changes direction. और अपने मार्ग को बदलता है, No more into the swine, और वो स्वर में नहीं है अभी, but to the Savior. लेकिन उद्धारकर्ता के पास No है, more towards his law, उसके व्यवस्था में but नहीं, in need of a grace लेकिन of परमेश्वर के God. अनुग्रह की जरूरत है। And this younger son changed his और यहाँ पे mind. छोटा बेटा अपने जीवन को बदलता है, And he said, और वो कहता है, the Bible says in verse number 20, और 20वां वचन में कहता है, and he arose तब वो उठ कर and he came to his father. अपना पिता के पास चला, And when he was yet a great way off, वो अभी दूर ही थे उसके पिता, his father saw him. और उसके पिता ने देख You know लिया। what the Bible says? क्या पता आपको परमेश्वर के वचन में क्या The कहता है? Bible says the father saw him. और वचन में लिखा कि पिता ने उसको देखा। You know what was happening? आपको क्या पता क्या हो रहे थे उस The समय? son had gone away from the father for a long time. जो संतान है वो बहुत दिन के लिए वो बाहर चले गए थे, The son had left the father. और छोटा बेटा ने वो अपने पिताजी The को छोड़ के son चला went गया, and he was enjoying wicked life in the world. और वो खराब जिंदगी वो जी रहे थे उस समय। He thought now he can enjoy life वो without सोच रहे the थे कि, father. और वो सोचते थे कि अभी वो जिंदगी को जी सकता है The सही son से, had gone far away out of the side of the father. और संतान अपने पिता से बहुत दूर चले गए थे। But I don't know how long it was. मुझे नहीं मालूम कितना लंबे समय के I लिए, don't know how many years it मुझे नहीं was. मालूम कितना साल के लिए, I don't know how many months it मुझे नहीं was. मालूम कितना महीने के लिए, But the son had gone away from the लेकिन father. उसके संतान अपने पिता से बहुत दूर चले गए थे। But where the son left, जहाँ पे अब बच्चा छोड़ दिया वहाँ पे, the son had left far away from the father. उस समय पिता से बहुत दूर हो गए The थे, father never left the place where he was. लेकिन पिता ने कभी वो जगह को नहीं छोड़ा जहाँ पे वो I छोड़ के चले believe गए थे। every day the father would come, मैं विश्वास करता हूँ कि पिता हर दिन आते थे, sit on the corridor, और वहाँ पे वो बैठते थे, and he would open up that door and look towards the road. और दरवाजा को खोल के वो रोड की ओर देखते थे शायद, And he would be sitting with a cup of tea और चाय के साथ वो बैठते थे वहाँ पे, and looking for his son every day. और उसके संतान के लिए हर दिन देखते थे, And he looked for his son every week. और उसके पितरों के लिए वो हमेशा And देखते he थे, looked for his son every month. और हर एक महीने को वो देखते थे, And he looked for his son every year. और हर एक साल में वो देखते थे, Oh, there my son is coming. शायद वो मेरे संतान आ रहा Oh, है, is that the man is that my son? क्या वही मेरा संतान है? Oh, that white shirt who is wearing, is that my son? जो व्हाइट कपड़े में आए हैं वो क्या वही मेरा Or संतान the है? one that is carrying the bag, is that my शायद son? जो बैग वो उठा रहे शायद वही मेरा The संतान father है। sat and watched his son every day. पिता ने बैठकर हर दिन वो अपने He संतान was को देखे, waiting for his son. वो हमेशा अपेक्षा करते अपने The संतान के father लिए। never left his place. पिता ने कभी वो जगह को नहीं छोड़ा, The son had left his place very लेकिन far. संतान ने बहुत ही दूर चले गए छोड़ But के, the father never left his लेकिन place. पिता ने कभी अपने जगह को नहीं The छोड़ा। Bible says the father was watching. परमेश्वर की वचन कहता है कि पिता वो देख रहे थे हर दिन, The son now repented. और यहाँ पे संतान अभी रिपेंट what करता the है। Bible says? क्या आपको पता है परमेश्वर की वचन क्या कहता है? The Bible says परमेश्वर
परमेश्वर की वचन कहता है, And he rose and came to his father. तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। But when he was yet a great way off, वो अभी भी दूर था उसके पिता से। his father saw him. पिता ने उसे देख You लिया। know why the father saw him? क्या आपको पता है पिता क्यों देखे उसको? Because the father had never taken his eyes out of his son. क्योंकि पिता ने अपने आंखों को कभी अपने संतान The से हटा eyes नहीं। of the father was always watching over his पिता son. की आंखें हमेशा अपने संतान की ओर देख रहे The थे। father was waiting for his son. पिता अपने संतान के लिए वो अपेक्षा कर रहे थे। That's the heart of the father. वही पिता का एक हृदय है That's the eyes of the और father. वही पिता का एक आंख है। We may misunderstand the शायद father, हम नहीं समझ गए अपने पिता को, but the father is always pouring his love. लेकिन पिता हमेशा अपने प्यार को उंडलता है। Even the famine was the love of the father. वहाँ पे अकाल भी परमेश्वर का प्यार Even था। sending the great whale to swallow Jonah was the love of the बहुत father. मछली जो परमेश्वर ने भेजा वो भी परमेश्वर का प्यार Oh, था। if Jonah is thrown into the well, into the ocean, my son Jonah will die. अगर मैं जोना को फेंकूंगा तो जोना मर जाएगा नदी के I अंदर। want to protect my servant. मैं अपने सर्वेंट को मैं सुरक्षा करना चाहता I हूँ। want to save his life. मैं उसके जीवन को रक्षा करना चाहता I'm हूँ। going to send a big whale to और मैं swallow my son. बहुत ही बड़ा मछली को मैं भेजूंगा जहाँ पे उसको And निकले। the whale comes and swallows Jonah. और वहाँ पे मछली आता है और जोना को निकल The जाता है। swallowing of the Jonah in the belly of the whale was the love of the father. और जोना को निकलना वो परमेश्वर का प्यार था। And vomiting him out into the sword of Nineveh was the love of the और father. बाहर उगल देना वो भी परमेश्वर का प्यार था। The father is always watching. परमेश्वर हमेशा देखता है। The father is always waiting. पिता हमेशा अपेक्षा करता The है। father is always wanting to have his children to और him. पिता चाहता है कि उसके बच्चे को प्राप्त करने के लिए। The father wants his children to enjoy life. पिता चाहता है कि वो अपने संतान ताकि लाइफ को एंजॉय करे। He arose and came to his father. वो उठकर अपने पिता के पास आया। Isn't that amazing? क्या वो बहुत अद्भुत है? When you realize now that you cannot do anything by your own good works, जब आप जान पाते हैं आपके अच्छे कर्मों से आप कुछ नहीं कर पाते that हैं, all your good works are like filthy rags, कि आपके हरे जो अच्छे कर्म है वो बहुत ही गंदा है, and all these good works are only going to lead you into damnation. कि जो अच्छे कर्म है आपको बुराई में लेके जाएंगे। I mean, I'm not saying good works are bad. मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे कर्म बुरा है, I'm saying the good works will not give you मैं salvation. कह रहा हूँ कि अच्छे कर्म आपको उद्धार नहीं देगा। The good works are not bad, जो अच्छे कर्म है वो खराब नहीं है, but you and I are bad. लेकिन हम सभी लोग बुरे हैं। So no matter how much good you think that you are doing, तो जितना भी आप सोचते हैं कि आप अच्छे हैं, because you are bad, क्योंकि आप खराब है, you cannot satisfy God. आप परमेश्वर को भी प्रसन्न नहीं कर You पाएंगे। need to come to Him. आपको परमेश्वर में आना है। The son got up. उस समय संतान उठकर He said, I want to go back to my और father. वो कहता है मैं अपने पिता के पास जाना चाहता My हूँ। life is miserable here. मेरा जीवन खराब हो चुका है यहाँ I पे, want to go back where my father is. और मेरा पिता वहाँ जहाँ पे वहाँ It पे is जाऊंगा, my father who will forgive me. और वही मेरा पिता जो मुझे It क्षमा is करेगा, my father who will give me और life. वही पिता जो मुझे जीवन देगा। And he rose. और वो उठकर And he came to his और father. अपने पिता के पास वो गए। Oh, how much we misunderstand our fathers. कितना हम ना समझ होते हैं अपने पिता Oh, के how ऊपर। much we think my father is so hard, he doesn't love me. कितना हम समझते हैं कि मेरा पिता बहुत ही खराब है, मुझे प्यार नहीं करते No हैं। matter how bad your father is, जितना भी आपके पिता खराब है, he loves you more than anyone in this world. संसार में से कोई किसी से भी वो आपको अधिक प्यार करता है। He protects you more than anyone in this world. सबसे ज्यादा वो आपको रक्षा करता है। Your mother may do everything to save you from problems. आपकी माँ हर एक चीजों को वो कर सकती है आपके जीवन को उद्धार रक्षा करने के लिए, Your father will not allow that problem to come to you. लेकिन आपके पिता वो समस्याओं को आपके जीवन में आने के लिए अनुमति नहीं देगा। That's the father. और वही पिता है। And you and I should not be misunderstanding our father. और हमें मतलब ना समझना नहीं चाहिए हमें In पिता fact, को, we need to grow to appreciate and encourage our लेकिन father. हमें क्या करना है, हमें पिताओं को अपने धन्यवाद देना चाहिए। In fact, we need to tell them how much we love them. और हमें कहना चाहिए कि हम कितना प्यार करते हैं अपने पिताओं से। And he arose and went to his father. और वो तब उठकर अपने पिता के पास चला He came to his father. the और अपने Bible पिता says. के पास वो आया। परमेश्वर से And कहता when है, he was yet a great way off, और हम देखते हैं कि वहाँ पे पिता ने देखकर वो oh कहा father, और कहा, हे पिता, you know, with my strength, I can't even reach you. देखियो मेरी शक्ति से सामर्थ्य से मैं आपकी ओर नहीं बढ़ पाता हूँ। With my strength, I can't even get where you are. मैं मेरी सामर्थ्य से जहाँ पे आप वहाँ पे मैं पहुँच Oh नहीं पाता हूँ। father, I'm such a sinner. पिता मैं पापी हूँ, I've fallen short from your glory. मैं आपकी महिमा से रहित हुआ I'm हूँ, so far off. मैं आप बहुत ही दूर हूँ। Even though I want to come close to you, अगर भी मैं आपके सम्मुख आना चाहता हूँ, I'm still so far off. लेकिन फिर मैं बहुत ही दूर हूँ। The Bible says, and he was yet a great way off. और परमेश्वर के वचन के फिर भी वो बहुत ही दूर थे।
The good news is, लेकिन अच्छा समाचार ये है, the Bible says, परमेश्वर की वचन कहता है, his father saw him. उसके पिता ने उसे देखा। The son cannot see. जो संतान है वो देख नहीं Oh, सकता। my eyes are filled with sin. मेरी जो आंखें पाप से My भरा हुआ heart है, is filled with sin. मेरे हृदय पाप से भरा हुआ My है, words are filled with sin. मेरे शब्दों पाप से भरा हुआ My है, steps are filled with sin. मेरे हर एक कदम पाप से My भरा हुआ touch है, is filled with sin. मेरे स्पर्श पाप से भरा हुआ Oh, है। Father, I'm fallen short हे from पिता, मैं your आपकी glory. महिमा से रहित हुआ हूँ। But the father saw him. लेकिन पिता ने देखा। Hallelujah. हालेलुया। The father saw him. पिता ने देखा, Because the father's eyes are holy. क्योंकि पिता के जो आंखें वो पवित्र है। Now, I'm not talking about the earthly father to be extremely holy. मैं संसार के पिताओं के बारे में नहीं कह रहा हूँ बहुत ही पवित्र के लिए, I'm talking about the heavenly father to be holy. मैं स्वर्ग के पिता के बारे में बात कर रहा हूँ जो Even पवित्र we है। fathers need God's glory, God's holiness. और परमेश्वर की पवित्रता की जरूरत है। Even we fathers have fallen so short from the glory of God. हम क्या होते हैं, परमेश्वर की महिमा से हम रहित हो Even जाते हैं we fathers have been sinners. और हम पापी होते हैं। But thank God that He forgave us and gave us new life. लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने हमें क्षमा किया और हमें नया जीवन दिया। The heavenly Father, His eyes are holy. जो स्वर्गीय पिता उसकी आंखें पवित्र है। The Bible says His Father saw him परमेश्वर की वचन कहता है उसके पिता ने देखा and He had compassion. और वो तरस खाया। What an amazing God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है। A God who watches over you and ऐसा परमेश्वर जो हमें हमेशा देखते a हैं, God that never takes away His eyes away from us. ऐसा परमेश्वर जो अपनी नजरों को हमसे नहीं हटाते हैं, Even from far away, He still watches over us. दूर से भी वो हमें देखता है। He saw him और उसने देखा and He had compassion. और उसने तरस खाया। That's my son. वो मेरा संतान है। Oh, he had gone so far. उसने बहुत ही दूर चले गए थे He tried to work over his righteousness. और अपने धार्मिकता से वो कार्य करने He शुरू tried किया to keep his own law. और अपने व्यवस्था को पालन करने के लिए कोशिश He's किया। so far. वो बहुत ही दूर है He can't even come to me. और मेरे पास नहीं आ सकता। And the Bible और says परमेश्वर की वचन कहता है, the father saw him पिता ने देखा and had compassion और उसके ऊपर तरस खाया and ran towards the son. और अपने संतान की ओर दौड़ते हुए चले The गए। father ran to the जो son. पिता अपने संतान की ओर गए, It is by His mercy and grace that we are ये saved. परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह से हम उद्धार You पाए didn't हैं। do anything for your salvation. आपने कुछ नहीं किया आपके उद्धार के In लिए, fact, He became man and came into this world. लेकिन वह मनुष्य बना संसार में आया। Because you cannot reach Him because of your sin. क्या क्या आप नहीं पहुंच पाएंगे परमेश्वर के But ऊपर, He came down to reach unto लेकिन you वो and me. नीचे आया ताकि वो हमसे In पहुंच fact, He सके। ran towards you and वो me. दौड़ते हुए चले गया हमारे ओर। That's my Father in वो heaven. हमारा पिता है, That's my Jesus. वही मेरा यीशु है। He has compassion over me. वो हमारे ऊपर तरस खाया, He has compassion over you. वो आपके ऊपर तरस He खाया, runs to you and वो आपके me. ऊपर भागते हुए जाता है He sees you और and आपको me. वो देखता है। Not only that, केवल वही नहीं, but He fell on his neck लेकिन उसने गले लगाया and He kissed him. और उसको चुंबन दिया Acceptation. और उसको ग्रहण किया He hugged him. और उसको वो गले लगाया। I know, son, you did everything by your own strength. मुझे पता है कि तूने अपने सामर्थ्य से सब कुछ किया, With your law and your own righteousness, you are still a filthy rag. आपकी धार्मिकताओं से आपने कोशिश किया, लेकिन फिर भी आप गंदे हैं। Here it is. My grace is यहाँ पे sufficient देखो, for you. जो मेरे अनुग्रह है वही काफी है तुम्हारे लिए। I come to you, my son. मैं तुम्हारे पास आता हूँ मेरे I संतान, run to you. मैं तुम्हारे ओर I भागता have हूँ, compassion on you. मैं तुम्हारे ऊपर तरस खाता I हूँ, love you, my मैं तुम्हें son. प्यार करता हूँ, I'm accepting you right now. मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। And my kiss is a sign of acceptance. और मेरे जो चुंबन है वो स्वीकार का एक चिन्ह है, That's my father. और वही हमारा पिता है, That's our father in heaven. वही हमारा स्वर्गीय पिता है। And the son said unto him, और पुत्र ने कहा उससे, Father, पिता, I've sinned against मैंने heaven तुम्हारे विरुद्ध पाप किया and in thy sight. और आपकी नजरों में I'm no more worthy to be called thy son. मैं आपकी योग्य नहीं आपकी संतान कहलाने के लिए। Good thing. अच्छी बात है, You have to humble yourself. और आपको नम्र होना चाहिए। We have to humble ourselves. हम सभी को नम्र होना चाहिए। The day we will realize that we are nothing जब हम समझेंगे कि हम कुछ भी नहीं and only sinners और केवल हम पापी हैं, and that only God can save us. केवल परमेश्वर हमें बचा सकता है, That is the day when He saves you और and उसी me. दिन में वो हमें बचाता है। As long and as long we continue to boast about how by our good works we can go to heaven. जब तक हम घमंड करते रहेंगे कि हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा हम स्वर्ग Oh, जाएंगे, because by keeping my laws I will go to heaven. व्यवस्था पालन करने से मैं स्वर्ग जाऊंगा,
No matter how long you will boast over your righteousness, जितना भी आप घमंड कर आपकी धार्मिकता के ऊपर, you will still fall short of the glory of आप God. परमेश्वर की महिमा से फिर भी रहित हो But जाएंगे. the day you realize, लेकिन जो दिन में आप उस समय जान पाएंगे, oh Father, हे पिता, I'm a sinner. मैं पापी हूँ, I've sinned against you. मैंने आपके विरुद्ध पाप किया I've sinned है, against heaven. मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप I किया है, am not worthy to be called thy मैं आपकी son. संतान कहलाने के लिए योग्य नहीं. Father, keep me like one of your servants. मुझे एक आपकी सर्वेंट के जैसा मुझे रखिए. That is called repentance. उसको हम रिपेंटेंस कहते हैं. But what does the father say? लेकिन पिता ने उस समय क्या कहा? But the father said to his servants, लेकिन पिता ने अपने संतान से कहा, bring forth the best robe, उस समय सबसे अधिक चीजों को लाइए put it on him, और उसके ऊपर डाल दो, and put a ring on his hands, और अब अंगूठा डाल दो उसकी उंगली and में, shoes on his feet, और नए जूतियां, and bring hither the fatted calf and kill it. और सबसे जो अच्छा बछड़ा है उसको लेके आओ, मारो, Let us eat and be merry. और हम खाएंगे और हम आनंद मनाएंगे. For this my son was dead क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, and is alive फिर again. जी गया, He was वो lost खो गया था, and is found. अब मिल गया, And they began to be और merry. वे आनंद करने लगे. That is what Father in heaven does. और वही स्वर्गीय पिता करता है. When you realize that you are a sinner, जब जान पाते कि आप पापी है, the Lord says, my grace is और sufficient. यीशु कहता है कि मेरी अनुग्रह तुम्हारे My में काफी है, blood will wash away your मेरी sin. लहू तुम्हें धो देगा, My righteousness will make you मेरी धार्मिकता righteous. तुम्हें धार्मिक बनाएगा. My son, you are my child. मेरे संतान, तुम मेरे संतान हो. Yes, you have gone far away. हाँ, तू दूर चले गए थे, Come on here. यहाँ पे आओ, You are my child. आप तुम मेरे संतान हो, Earn my righteousness यहाँ पे upon मेरी you. धार्मिकता, Take my ring and the sonship now. और मेरी अंगूठा तुम लो. We are in a relationship और इस समय now. हम रिलेशनशिप में हैं. I'm going to celebrate. मैं आनंदित मनाऊंगा. That's what happens in heaven. और वही स्वर्ग में होता है. When one sinner repents, जब एक पापी पश्चाताप करता है, there is rejoicing in heaven. स्वर्ग में आनंदित मनाया जाता There है, is celebration in heaven. और स्वर्ग में There's सेलिब्रेशन a होता है, party in heaven. और स्वर्ग में पार्टी होता है. Everybody celebrates in heaven. सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं स्वर्ग में. Are you a sinner? क्या पापी है? Are you a sinner? क्या पापी है? Have you trusted Jesus क्या Christ? आपने यीशु को विश्वास किया है? If you have trusted Jesus Christ, अगर आपने यीशु को विश्वास किया है, God is celebrating you today. परमेश्वर आज सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके He ऊपर, calls you my son. और वो कहता है कि तुम मेरे संतान हो. You may say, what about me? I'm a girl. शायद आप कह सकते हैं मैं लड़की हूँ. Even though you are a girl, आप लड़की हैं, He still calls you my son. फिर वो आपको कहता है मेरा संतान Because in कहके, heaven, क्योंकि स्वर्ग में, God gives you the same relationship. क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में सबको एक ही रिलेशनशिप देता है, He gives you the rights of a son. और वो संतान का एक अधिकार देता है. And so there was joy. और वहाँ पे आनंदित था, There was celebration. और वहाँ पे सेलिब्रेशन थी. The son is back home. और जो संतान है वो वापस घर में आया, He thought by he can save himself by his own wisdom and righteousness and law. और उसने सोचा कि खुद के ज्ञान से, खुद की धार्मिकता से, व्यवस्था से वो बचेगा, He became miserable. और वो बहुत ही बुरा बन गया. He realized only the grace of God can save और him. उसने जान पाया कि केवल परमेश्वर की अनुग्रह मुझे बचा सकता He है, came to his father. और अपने पिता के पास वापस He आया, repented of his sin. और पाप से पश्चाताप किया, The father accepted him. और पिता ने उसको ग्रहण किया. The father's eyes is always upon you. और पिता की जो आंखें आपके हमेशा ऊपर है, He is compassionate. और उसकी दया. When you take one step of repentance towards God, जब एक कदम लेते हैं पश्चाताप की ओर, Father runs towards you, पिता आपके ऊपर भागते हुए जाता है, falls on your neck, और आपको गले लगता है, hugs you, और आपको गले लगता है उसमें, kisses you, और आपको चुंबन देता है, and says, और वो कहता है, you are my child. तुम मेरे संतान हो, You are mine. तुम मेरे हो. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. We won't go into the older son's life. और हम ओल्डर सन के ऊपर हम नहीं जाएंगे इस समय. The problem with the older son was he was keeping law. जो बड़े उसके पुत्र थे वो आज्ञा का पालन कर He रहे was थे, saying, look how good I am. और वो कह रहे थे कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, Look, I kept everything that you told me. देखिए जो कुछ भी तुमने कहा मैंने सब कुछ किया. He was boasting on his वो self-righteousness. अपने घमंड कर रहे थे अपने धार्मिकता के ऊपर, But there was no celebration for him. लेकिन उसके लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं थी. But the younger son, लेकिन जो छोटा बेटा था, he realized, I'm a sinner. वो जान पाया कि मैं पापी हूँ के I need the grace of God. मुझे परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है. He came to the father. और वो अपने पिता के पास चले गए, And the father celebrated him. और पिता ने बहुत सेलिब्रेट किया. Amen. आमीन. Are you putting your faith in your good works? क्या आप अपने विश्वास को अच्छे कर्म के ऊपर डाल See, रहे I हैं? come to church every Sunday. देखो मैं हर रविवार को कलेश आता See, हूँ. I'm a good person. देखो मैं अच्छा व्यक्ति हूँ. I got baptized 4-5 मैंने times. 5-6 बार बपतिस्मा Now, लिया. I give offering to the church. मैं ऑफरिंग देता हूँ I कलेशा don't में. fight with my neighbors. मैं अपने नेबर से फाइट नहीं I'm करता हूँ. okay. मैं अच्छा हूँ, And because I'm fine, I'll go to heaven. क्योंकि मैं अच्छा हूँ इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा. The Bible says परमेश्वर की वचन famine will कहता है, come. परमेश्वर की वचन कहता है, Famine will come.
तो आपके जीवन में ताड़नाएं आएंगे। Your good works are like filthy rags. आपके जो अच्छे करे वो सब गंदे हैं। With your good works, you cannot go to heaven. आपकी अच्छे कर्म के द्वारा आप कभी स्वर्ग नहीं जा Just पाएंगे। because you came to have church, you don't go to heaven. इसका मतलब ये नहीं कि आप कलीसिया है इसलिए आप स्वर्ग जाएंगे। Just because you got baptized, you don't go to heaven. आपने बपतिस्मा लिया इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप उद्धार पाएंगे। Just because you put some offering, you don't go to heaven. आपने ऑफरिंग दिया इसलिए आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। No, those are all good things. सब ये सब चीजें अच्छी है, But that does not save your soul from hell. लेकिन वो आपको उद्धार नहीं देता है। Christ, God became man and came into this world. परमेश्वर ने मनुष्य बना संसार में आया Because you cannot go to heaven by your good works. क्योंकि आपके अच्छे कर्मों से आप कभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। So God became man and came into this world. तो परमेश्वर मनुष्य बनकर जगत में आया। Jesus is the one true God. यीशु मसीह एक सत्ता परमेश्वर है He took yours and my sins upon him. और उन्हें हम सभी के पापों को अपने ऊपर लिया He died on the cross of Calvary for your sin. और कालवरी के क्रूस में वो मारा गया He shed his blood to wash away your और sins. अपने पवित्र लहू को बहाया हमें धोने के लिए He was buried. और उसको गाड़ा गया। But on the third day, लेकिन तीसरा दिन में he rose again victoriously. और विजेता से वो वापस जीवित हुआ Now he tells you, और वो आज कहता है come to me. मेरे पास आओ, I will save you. मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, I'll forgive you. मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, I'll wash away your मैं sin. तुम्हारे हरे पापों को धो दूंगा। Jesus Christ became man. God became man. परमेश्वर मनुष्य बना That man can become the son of God. ताकि मनुष्य लोग परमेश्वर के संतान बन सके। He shed his blood उन्होंने पवित्र लहू को बहाया so that your sins can be washed ताकि away. हमारे जो पाप है वो धुला जा सके। He died वो मरा so you can have life everlasting. ताकि हमारे जीवन में अनंत जीवन हो He सके। rose again वो वापस जी उठा so you can have hope that you will also rise again with ताकि him. हमारे पास एक आशा हो सके एक दिन हम भी उठेंगे के। That's the God that we serve. और वही हमारा परमेश्वर जो हम उसके सर्व करते हैं। Where will you go if you die tonight? अगर आप आज मरते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? Are you 100% sure you'll go to heaven? क्या आप निश्चय करते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे? If you're not sure, अगर आप श्योर नहीं है, come to Jesus. यीशु के पास आओ, Receive him today. यीशु को ग्रहण करो आज। Repent of your sin. आपके पाप से मन फिराओ, Repent of your self-righteousness. आपकी धार्मिकता से आप इस समय पश्चाताप Your करिए। religion. आपके धर्म, Your sin. आपके पाप And turn to Jesus और Christ. यीशु मसीह की ओर आप जाइए And say, Lord Jesus, और यीशु से कहिए, यीशु मसीह I come to you. मैं आपके पास आता हूँ, Receive me, Lord. मुझे ग्रहण करिए यीशु, Forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा I करें। know that you are the true God. मैं जानता हूँ कि आप सत्य परमेश्वर है। I know you became man. मुझे मालूम है कि आप मनुष्य बना And you took my sins और upon you. मेरी पापों को तूने अपने ऊपर लिया। You died on the cross for my sin. आप क्रूस पे मारा गया मेरे लिए, You shed your blood for my sin. आपकी लहू को मेरे लिए आपने बहाया। You rose again on the third आप day. तीसरा दिन वापस जी उठे। I believe with my मैं heart. विश्वास करता हूँ प्रभु Lord, I जी, receive you now. मैं आपको ग्रहण करता हूँ यीशु अभी, Save me. मुझे उद्धार दे प्रभु When जी। you come to Jesus जब यीशु के पास आएंगे, and you believe with your heart आपके हृदय से जब विश्वास करेंगे and you receive him, और जब यीशु को ग्रहण करेंगे, the Bible says परमेश्वर की वचन कहता है he will save you और आपको वो बचाएगा by his grace अब उसके अनुग्रह के द्वारा, through faith. विश्वास से, Not by your good works, आपके अच्छे कर्मों से नहीं, but by his grace. लेकिन उनके अनुग्रह के द्वारा, And by faith you receive him. विश्वास से आप उसको ग्रहण करते हैं That is all it takes. और वही आपको लेकर जाता है। He did everything for you. परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ किया He's a compassionate God, और वो दयालु परमेश्वर है, forgiving God, और माफ करने वाला परमेश्वर है loving और God. प्यारा परमेश्वर है। Come to him today. आज यीशु के पास आइए। If you are a saved Christian, अगर आप उद्धार पा चुके हैं, celebrate him. आप सेलिब्रेट करिए आज Be grateful towards him. और परमेश्वर की ओर धन्यवाद Be दें thankful और towards him. धन्यवाद है हमेशा। Go home. आप घर में जाइए, Tell your father आपके पिता को कहिए how much you love him, कितना आप प्यार करते हैं, how much you appreciate him कितना आप उसको धन्यवाद देते for हैं, all the hard works that he did to raise you up जो कुछ भी वो काम करते हैं आपको बढ़ाने के लिए and all that he did to your life, और जो कुछ भी उन्होंने आपके जीवन में किया। where sometime you have failed to even appreciate it. शायद आपने बहुत से समय आप उसको धन्यवाद नहीं दिए। It is easy to tell God, Lord, thank you, I love you. ये बहुत ही इजी है, सरल है यीशु मसीह को कहने के लिए मैं It's sometimes धन्यवाद प्यार hard to करता tell हूँ, our biological father whom we can say. लेकिन हमारे पिता को इस समय हम बहुत से समय हम बोलने के लिए हम इनकार करते हैं, But because we love our heavenly father, क्योंकि हम स्वर्गीय पिता को हम प्यार करते हैं we can tell our biological father, और हमारे संसारिक प्यार को पिता को हम कह सकते हैं, Daddy, I appreciate all that you do for me. पिता मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया, Thank you. धन्यवाद। Shall we pray? आज इस समय हम प्रार्थना करें। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, thank you for thy word. आपके शब्दों के लिए आपको धन्यवाद। Your word is powerful, आपकी वचन बहुत ही सामर्थ्यशाली है so प्रभु जी, simple and plain, बहुत ही सरल है प्रभु जी, pure and perfect. और बहुत ही शुद्ध है परमेश्वर पिता। And oh Lord, we thank you for speaking to us today. और आप हमसे आपने बात किया, आपको धन्यवाद प्रभु जी। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that you will speak to your children today. This आपके morning. बच्चों के जीवन पे आप बात करिए। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, make their hearts tender. सभी के हृदय को आप
नरम बनाए प्रभु जी, compassionate, और दयालु बनाइए, and soft और बहुत ही सॉफ्ट बनाइए प्रभु towards जी, your word. आपके शब्दों के ऊपर Move in their hearts, oh God. आपकी उन लोग के हृदय में कार्य कर प्रभु जी, Convict them today. उन लोग के जीवन में कार्य कर परमेश्वर पिता। And Lord, if they are not saved, save them today. प्रार्थना करते हैं अगर उद्धार नहीं पाए तो उद्धार पाने के लिए And प्रभु for जी, those who are saved, और जो उद्धार पा चुके I हैं pray that Thou will bless them. मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोग को आप आशीष करें, Make them powerful in the Spirit. उन लोगों को आप में सामर्थ्यशाली बना Help them प्रभु to walk with you and talk with you. आपके साथ चलने के लिए, बात करने के लिए मदद Raise करें। them up उन लोगों को उठाइए प्रभु to जी, do great things for you. ताकि आपके लिए अद्भुत कार्य को कर सके। Lord, I'm especially praying for everyone gathered here right now. मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे जितने सारे मौजूद हैं प्रभु Put जी, an edge of protection around उन लोगों को रक्षा around करके रखें प्रभु जी, them. And those who are watching us online. और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी, Let your healing touch go upon everybody. आपकी सामर्थ उन लोगों के जीवन में जाए प्रभु जी, That none of them will be in contact with ताकि coronavirus. कोई कोरोना वायरस से आक्रमण ना हो प्रभु But oh जी। God, we pray that Thou will heal everybody from all sicknesses. लेकिन हम प्रार्थना करते हैं हर एक रोग बीमार से उनको बचाए करें, Provide their needs, oh God. क्योंकि उन लोगों आपको जरूरत है प्रभु जी, Heal their sickness. उन लोगों को चंगाई दे प्रभु जी, Heal their उन family. लोगों के परिवार को चंगाई दे प्रभु जी, And provide all their और needs. लोगों की जरूरत को पूरा करें And raise them up. और लोगों को उठाइए प्रभु We जी, give you all the glory and honor. सराहना महिमा को देते हैं, In Jesus' mighty name. we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. आमीन। This morning.